गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. आवाज येतोय सगळ्यांना? आर यू गेटिंग क्लिअरली साउंड व्हिडिओ बोथ? So let us just revise whatever you have learned yesterday about the vertical circular motion. Okay. In vertical circular motion, you have just first of all learn about the difference. Vertical circular motion, horizontal circular motion. What is the basic difference? Horizontal circular motion, potential. What? Horizontal circular motion, potential energy constant. Vertical circular motion, potential energy variable. Kinetic energy may be constant, may be variable in both. Gravity affects in vertical, doesn't affect in horizontal. Then I just explained about horizontal and vertical plane. In vertical plane, gravity affects, horizontal gravity does not affect. Then how to find the height of any point from the bottommost point. Bottommost point पासून सर्कल वरच्या कुठल्याही पॉइंटची हाईट कशी कॅल्क्युलेट करायची. हाउ टू कॅल्क्युलेट एनी पॉइंट P. लाइन OP जॉइन करो. Angle made by line OP with the OB is theta. From this theta you can find the height. हर बार ये डेरिवेशन करते बैठने की जरूरत नहीं. You can directly use h equal to r in bracket 1 minus cos theta. Height at the lowest point से ही हाइट गिननी है तो b की हाइट कितनी आएंगी 0. इन हाइट एट द पॉइंट p, एट पॉइंट p की हाइट कैसे निकालनी है? At point P, height is given by r in bracket 1 minus cos theta. Level of center, height is r. Highest point, height is twice r. Theta, agar if you have to learn in terms of theta, at the lowest position, theta is 0. Here, theta is 90. Here, theta is 180, 270, like this. That is complete circle. Then, again about the potential energies. Height at the bottom, 0. Level of center, r. Any position, twice r. Then, at highest point twice r, any position r in bracket 1 minus cos theta. Then from this you can find the potential energies. Potential energy given by mgh. Mg, height of B is 0, potential is 0. Height of the level of center is r, mgr. Height of the highest point is twice r, twice mgr. At any position mg into height is r in bracket 1 minus cos theta. And kinetic energy is half mv square. जहां जितनी वेलोसिटी उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी. एट द बॉटम हाफ m into vv square. Level of center half m into vc square, va square, vp square, like this. And sum of these two, potential energy and kinetic energy, is nothing but the total energy. If there is no loss of energy, then while raising, while coming down, going up, height increases, potential energy increases. Coming down, gravity affects in vertical plane. When the particle is moving up, then while going up from B to C to A, height increase, velocity decrease. Coming down means height decrease, velocity increase. While going up, height increase, potential energy increase, hence velocity decrease, kinetic energy decrease. Gain of potential energy, loss of kinetic energy. Loss of kinetic energy, gain in potential energy while going from B to C to A. While coming down, there is loss of potential energy, gain of kinetic energy. Using these two stages, there is loss, gain. You have to calculate now formulas of velocity at different position required. So, while going up, ऊपर जा रहा है, हाइट बढ़ने वाली है, स्पीड कम होने वाला है. हाइट बढ़ने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी का गेन, स्पीड कम होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस. नीचे आ रहा है, हाइट कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, स्पीड बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का गेन. ये दो स्टेप्स आपको काम में आएंगी. देन ये कल मैंने आपको बताया था कि कौन से टाइप के आपको सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कंडीशंस आने वाली है. ब्रिज की कंडीशन है, ये हॉलो स्फीयर की कंडीशन है, बकेट में पानी भर के उसको घुमाना उसकी कंडीशन है, स्टोन टाइट टू स्ट्रिंग उसकी कंडीशन है. तो हम इस कंडीशन से स्टार्ट करते, स्टोन टाइट टू स्ट्रिंग एंड रिवॉल्व्ड इन वर्टिकल सर्कल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो अबाउट, यहां तक हमने कल पढ़ा था. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो अबाउट व्हाट कैन सपोर्ट व्हाट, क्या कौन सा ऑब्जेक्ट क्या सपोर्ट कर सकता है. जैसे ये सॉलिड है,
ये स्ट्रिंग भी सॉलिड है, स्ट्रिंग इज द फ्लेक्सिबल सॉलिड एंड दिस इज नॉन फ्लेक्सिबल सॉलिड। पेन लिया मैंने, अब अगर इस पेन को मैंने, पेन ऐसा नीचे रखा हुआ है, इसके ऊपर लोड रख दिया तो इट कैन बियर। अभी पेन में कॉम्प्रेशन है कि टेंशन है, दबा दिया पेन को, दबा दिया मतलब कॉम्प्रेशन है। नाउ दिस पेन कैन सपोर्ट द कॉम्प्रेशन, पेन कॉम्प्रेशन सपोर्ट कर सकता है। ऊपर से कोई वेट रख दिया, झुका नहीं पेन, वेट साइन कर लिया उसने। वही अगर पेन को मैंने ऊपर टांग दिया और नीचे कोई वेट लटका दिया उसको, तो भी वो सह सकता है। नाउ इट इज टेंशन की कॉम्प्रेशन, खींचा हुआ है तो टेंशन, ऊपर से रखा हुआ है तो कॉम्प्रेशन। ये नॉन फ्लेक्सिबल सॉलिड है, ये टेंशन भी सह सकता है, कॉम्प्रेशन भी सह सकता है। टेंशन को भी सपोर्ट करेगा, कॉम्प्रेशन को में भी सपोर्ट कर सकता है। बट वायर, केबल, चेन, स्ट्रिंग, these are flexible solid, they are useful only in tension। मैंने अगर इसको बोला कि भाई मुझे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर रखना है, स्ट्रिंग को बोला सपोर्ट कर, स्ट्रिंग को बोला ऊपर रख इसको, इज इट पॉसिबल? स्ट्रिंग कैन नॉट सपोर्ट, स्ट्रिंग इज फ्लेक्सिबल। तो स्ट्रिंग, चेन, केबल, दीज आर यूजफुल ओनली इन टेंशन, नॉट इन कॉम्प्रेशन। ये कॉम्प्रेशन में कुछ काम के नहीं है। आप कोई भी चीज को ऐसे लटका के रख सकते, लेकिन स्ट्रिंग को बोला, खुद भी तो खड़ी नहीं हो सकती स्ट्रिंग, किसी और को क्या सपोर्ट करेंगे, खुद ही खड़े नहीं हो सकती स्ट्रिंग। तो इज फ्लेक्सिबल सॉलिड, एज इट इज फ्लेक्सिबल सॉलिड इट कैन नॉट सपोर्ट द वेट फ्रॉम टॉप, ये कंप्रेशन में कुछ काम की नहीं रहती। तो अब स्ट्रिंग, लेकिन अब सर्कुलर मोशन तो करा सकते हैं इसको। नाउ टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट इज रिक्वायर्ड, सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या लगता? टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर शुड बी वन फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। That centripetal force is given by mv square by r, and object is having the weight of the object is nothing but m into g। ये दोनों को आपको समझना है, weight and centripetal force। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने कल आपको क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में भी बोला था कि व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, उतना ही समझना है। क्रिटिकल समझ गया, एक वेलोसिटी का डेरिवेशन आ गया, एक कंडीशन समझ गई कि बाकी फार्मूले अपने आप एक 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 डिराइव होते जाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन कि वेयर द क्रिटिकल कंडीशन ऑकर्स एंड हाउ क्रिटिकल कंडीशन ऑकर्स, कहां आती है क्रिटिकल कंडीशन, कैसे आती है क्रिटिकल कंडीशन, इन सब के बारे में। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे आप घुमा रहे हो तो एट दैट टाइम सबसे पहले इसको रुका के रखते। ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, लटका हुआ है ऐसे, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट जो एट रेस्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट सपोर्ट कर सकता है, इस ऑब्जेक्ट कैन सपोर्ट द वेट। ऑब्जेक्ट का वेट स्ट्रिंग ने सपोर्ट किया हुआ है। तो अभी स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, इज देयर एनी टेंशन इन द स्ट्रिंग? इस ऑब्जेक्ट का जितना वेट है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ उसको नीचे खींच रही है, स्ट्रिंग उसको जाने नहीं देती, तो स्ट्रिंग में टेंशन है, और इस टेंशन इन स्ट्रिंग इक्वल टू इट्स वेट। जब ऑब्जेक्ट सिर्फ लटका हुआ है, बस लटका के रखा इसको, ऑब्जेक्ट बस इसको लटका के रखा, तो एट दैट टाइम तो व्हाट इज टेंशन इन स्ट्रिंग? इसका वेट इसको नीचे खींचेगा mg, और स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा T फॉर टेंशन प्रेजेंट। टेंशन इन स्ट्रिंग कितना है? अभी ऑब्जेक्ट मोशन में वगैरह कुछ नहीं है, एट रेस्ट है, एट रेस्ट है, तो व्हाट इज टेंशन इन स्ट्रिंग? अभी टेंशन कितना है? जितना वेट है उतना संभालना है, बस mg इज द टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग इज mg। वही अगर अब ये स्टोन घूमने लग गया, पहले तो ऑसिलेशन कराते उसको, ऑसिलेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सर्कल, या सर्कुलर मोशन में झूले हुए ऐसे झूला पूरे, इट इज कंप्लीट घूम के नहीं आते ऐसे, लेकिन ऐसे जो होता है इट इज लाइक द ऑसिलेशन। तो ये ऑसिलेटरी मोशन अगर है तो इट इज पार्ट ऑफ सर्कल, ये पार्ट ऑफ सर्कल ही है, इट इज मूविंग दिस वे, जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है, सर्कुलर मोशन ही कर रहा है। तो हम लोग इसको सर्कुलर मोशन शुरू हो गया इसका, आइदर टू एंड फ्रो जो भी है। अब सर्कुलर मोशन होने के लिए एक फोर्स लगता, व्हिच फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? अगर ये स्ट्रिंग कट जाए तो ना ये लटक के रहेगा ना घूमेगा, नीचे गिर जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो इसको जो घूमना शुरू है अभी, जस्ट रुका हुआ है, तो स्ट्रिंग को एक ही काम है, इसका वेट संभालना। जब इसने घूमना शुरू किया तो वेट तो है ही, वेट थोड़ी कम हो गया। ऐसा जब घूमना शुरू किया तो वेट तो संभालना ही है। एट द सेम टाइम घूमने के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स लगता, दैट इज ऑल्सो टू बी प्रोवाइडेड। ये काम किसका है? कौन करेगा ये काम? स्ट्रिंग हैज टू परफॉर्म दैट ड्यूटी। स्ट्रिंग का काम है कि रुका हुआ है, वेट संभाल के रख, मेरे को घूमना है, घूमना है तो मेरे को घूमने के लिए फोर्स भी होना, कौन देगा? स्ट्रिंग हैज टू प्रोवाइड। अब स्ट्रिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी
स्ट्रिंग जब ये ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ है तो स्ट्रिंग से आपको क्या एक्सपेक्टेड है, और जब ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो स्ट्रिंग से क्या और क्या एक्सपेक्टेड है। अभी जो एट रेस्ट है तो स्ट्रिंग का काम है इसका वेट संभालना। वही अगर ये मोशन में आ गया तो वेट तो संभालना अभी भी है, पहले भी था अभी भी है। एट द सेम टाइम जैसे इसने सर्कुलर मोशन शुरू कर दिया, पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन शुरू कर दिया, तो उसके लिए लगने वाला कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्ट्रिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब बढ़ती है, जब ये एट रेस्ट है और इन मोशन है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट सिर्फ वेट संभालना है, वही ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आ गया तो वेट भी संभालना है और सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी जो फोर्स है वो भी प्रोवाइड करना है। विच फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये घूमने लग गया तो घूमते वक्त इसको और एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। तो ऐसे दो दो काम हो गए स्ट्रिंग के ऊपर, वेट भी संभालो सेंट्रीपिटल फोर्स भी दो। तो टेंशन नाउ व्हाइल मूविंग है, तो टेंशन इन स्ट्रिंग इज बिकॉज ऑफ व्हाट एंड व्हाट। मैं प्लस माइनस कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट एंड व्हाट बोल रहा हूं। एक तो वेट है और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स है। दो पार्ट स्ट्रिंग में टेंशन कंट्रीब्यूट करते हैं। टेंशन इज बिकॉज ऑफ दिस टू पार्ट्स, mg वेट एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू परफॉर्म द मोशन इन वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन में और हॉरिजॉन्टल प्लेन में फर्क क्या था। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑब्जेक्ट का वेट वाज नॉट अफेक्टिंग, whereas वर्टिकल प्लेन में ऑब्जेक्ट का वेट अफेक्ट करने वाला है। तो इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, जब ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्टिकल प्लेन में, कहां इसके चांसेस है सर्कुलर मोशन फेल होने के, बस उस बात को आपको समझना है। अभी मैं आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एक्सप्लेन करता, विद द हेल्प ऑफ नंबर्स आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, देन विल गो टू द कंडीशंस। सपोज ये ऑब्जेक्ट अब पूरा सर्कुलर मोशन कर रहा है, कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रहा है, पूरे सर्कल पे घूम रहा है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट एट बॉटम है, बॉटम बी है, लेवल ऑफ सेंटर सी है, हाईएस्ट पॉइंट ए है, इधर डायमेट्री के लिए अपोजिट डी है, सेंटर ऑफ सर्कल ओ है। अब ऑब्जेक्ट को वेट तो है ही, कहीं भी जान दो ऑब्जेक्ट को, बॉटम पे रहा तो भी वेट है, लेवल ऑफ यहां पे आ गया बीच में तो भी वेट है, यहां पे आ गया तो भी वेट है, यहां पे आ गया तो भी वेट है, यहां पे आया तो भी वेट है। बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ वेट, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, हाथ पे रखा हुआ है, कहीं टेबल पे रखा हुआ है, weight of the object always act vertically downwards toward the center of earth। तो यहां पर है तो भी वेट डाउनवर्ड है mg, यहां पर है तो भी वेट डाउनवर्ड है mg, यहां पर है ये आपको समझना है, यहां पर भी है तो वेट डाउनवर्ड है, दैट इज mg। तो हर जगह पे उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है दैट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट होगा, ये mg, यहां गया तो भी वेट mg। ऑब्जेक्ट का वेट तो उसको हमेशा नीचे ही खींचेगा, घूमना उसको सर्कल पे है, यहां पर रहा तो भी नीचे ही घूमेगा, नीचे ही खींचेगा उसका वेट। ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करते जाएगा, ऑब्जेक्ट गॉन परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो अभी जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स भी लगता, वेट तो हमेशा ही है, रुका तो भी वेट है, मोशन में रहा तो भी वेट तो है ही। एंड वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड वेयर, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। उसको सेंटर से कोई मतलब नहीं, इस सेंटर से कोई मतलब नहीं, वेट हमेशा डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ऑब्जेक्ट चाहे बी पे रहो, पी पे रहो, सी पे रहो, ए पे रहो, डी पे रहो, एनीवेयर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। एक फोर्स के बारे में डायरेक्शन हो गई। नाउ दूसरा जो सर्कुलर मोशन के लिए लगता फोर्स, वो कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर के अवे फ्रॉम सेंटर, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। तो सेंटर किसका, सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का सेंटर। ऑब्जेक्ट जब घूम रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल भी होना। अगर ये रुका हुआ है यहाँ पे, अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ है, एट रेस्ट है, तो अभी टेंशन इन स्ट्रिंग कितना है, अभी टेंशन इन स्ट्रिंग इज बिकॉज ऑफ वेट ओनली, सिर्फ वेट की वजह से टेंशन है। वही अगर घूमने लग गया, घूम रहा है, तो इसको घूमने के लिए एक फोर्स लगता, कौन सा फोर्स लगता, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, कौन देगा, तो स्ट्रिंग के भरोसे सब कुछ चल रहा है। जब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, अभी यहां पर है, यहां से यहां जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा कंटिन्यूअसली। तो अब यहां पर वेट का डायरेक्शन हमने निकाल ली, अब रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल कहीं पर भी रहने दो, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड सेंटर ही रहेगा, सेंट्रीपिटल 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 सेंट्रीपिटल।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। कौन देगा? स्ट्रिंग देंगी। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता तो टेंशन इन स्ट्रिंग इज ओनली बिकॉज ऑफ वेट, दूसरा कुछ काम ही नहीं था। जब ये मोशन में आ गया, मतलब यहां टेंशन सिर्फ वेट की वजह से था, लेकिन जब ये मोशन में आ गया तो मोशन के लिए फोर्स भी देना जरूरी है। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स भी देना जरूरी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स देना है, वेट भी संभालना है। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वेट उसको नीचे खींचता है, वेट को भी संभालना है, सीपीएफ भी देना है। टेंशन इन स्ट्रिंग इज बिकॉज ऑफ दिस टू। जब ये ऑब्जेक्ट एट द लेवल ऑफ सेंटर चला जाएगा, देखो स्ट्रेचिंग एंड हेल्पिंग दो वर्ड्स आगे यूज करेंगे। यहां पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहा है। मोशन है तो भी स्ट्रेच कर रहा है वेट नीचे, मोशन नहीं है तो भी स्ट्रेच कर रहा है नीचे। स्ट्रिंग को स्ट्रेच करना वेट का काम है। यहां जाने के बाद स्ट्रिंग है हॉरिजॉन्टल और वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ऐसे वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, वेट इधर, स्ट्रिंग को काम है सेंटर तरफ खींचना। अब इस ऑब्जेक्ट का वेट इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड सेंटर खींच रहा है कि अवे फ्रॉम सेंटर? आई एम आस्किंग वेट। जैसे यहां वेट ऑफ ऑब्जेक्ट उसको कहां खींच रहा था? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज पुलिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर कि अवे फ्रॉम सेंटर? ये वेट हमेशा डाउनवर्ड रहता। सर्कल का सेंटर यहां पर है, तो वेट ऑब्जेक्ट को कहां खींच रहा है? टुवर्ड सेंटर के अवे फ्रॉम सेंटर? वेट इज पुलिंग इट अवे फ्रॉम सेंटर। यहां जाने के बाद स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गई, वेट उसका कहां खींचेगा उसको? वेट इज पुलिंग इट डाउनवर्ड्स। वेट डाउनवर्ड्स ही रहने वाला है। स्ट्रिंग का काम है सेंटर की तरफ खींचना, बॉडी का वेट उसको नीचे खींचेगा ग्राउंड की तरफ। तो फिर अब ये वेट इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड सेंटर खींच रहा है, अवे फ्रॉम सेंटर खींच रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स खींच रहा है? वेट इज पुलिंग इट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नाइदर टुवर्ड सेंटर नॉर अवे फ्रॉम सेंटर। अवे फ्रॉम सेंटर खींचता तो स्ट्रिंग को संभालना पड़ता, टुवर्ड सेंटर रहता तो स्ट्रिंग को हेल्प कर सकता था। लेकिन ये वेट ना टुवर्ड सेंटर है ना अवे फ्रॉम सेंटर है, इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यहां स्ट्रिंग को वेट संभालना है क्या? जैसे मैंने बोला आपको अपना हाथ है तो हाथ स्टीफ है, आपको बोला कि ये ऐसा वेट पकड़ के रखो, ये पकड़ के रखा, वेट गए के नीचे? नहीं, हाथ स्ट्रांग है इसलिए। अगर मैं स्ट्रिंग को बोलूं, कोई रस्सी है, रस्सी को वेट बांध दिया, स्ट्रिंग को बोला मुझे वेट यहां रखना है, संभाल के रख इसको जरा, रख सकती है? स्ट्रिंग कैन नॉट सपोर्ट। स्ट्रिंग यहां सपोर्ट कर सकती है वेट को, लेकिन यहां ऐसा रख के सपोर्ट कर सकती है क्या? अपना हाथ समझो स्ट्रिंग है, यहां पे वेट लगा दिया, नीचे आ जाएगा लाइक दिस। फिर ये अगर स्ट्रिंग है तो इसका वेट इसको नीचे खींच रहा है, ना टुवर्ड सेंटर खींच रहा है ना अवे फ्रॉम सेंटर खींच रहा है, नीचे खींच रहा है। तो वेट विल कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन द स्ट्रिंग की विल नॉट कंट्रीब्यूट। इस ऑब्जेक्ट का वेट स्ट्रिंग में यहां पर लेवल ऑफ सेंटर पे कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो ना टुवर्ड सेंटर है ना अवे फ्रॉम सेंटर है। तो अब यहां सर्कुलर मोशन तो है, सर्कुलर मोशन के लिए क्या लगता? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां स्ट्रिंग से आपको क्या एक्सपेक्टेड है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, वेट, यहां पर वेट क्यों, यहां पर वेट क्यों आया? स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है, स्ट्रिंग को उसको सपोर्ट करना है, सपोर्ट, साथ साथ में मोशन भी करना है, तो मोशन के लिए भी फोर्स दे दिया, वेट भी संभाला, मोशन के लिए फोर्स भी दिया, किसने? इस स्ट्रिंग ने। यहाँ पर वेट स्ट्रिंग को ना खींच रहा है ना हेल्प कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो फिर यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स देना इतना ही काम स्ट्रिंग का है। यहाँ पर टेंशन इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ओनली, यहाँ वेट इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता। अब चेक एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे चेक करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे चेक करने के पहले हम लोग थोड़ा नंबर्स में पढ़ लेते हैं इसको, नंबर्स में वो इजी रहेगा पढ़ना इसको। सपोज सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज 12 एंड वेट इज 10। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सर्कुलर मोशन के लिए लगता है, जो उसके स्पीड पे डिपेंड करता है, m स्क्वायर बाय r। इज द मास, वो कांस्टेंट रहेगा, r इज द रेडियस, कांस्टेंट रहेंगी। स्पीड आप कम कर सकते हो, स्पीड ज्यादा कर सकते हो, तो डिपेंडिंग ऑन स्पीड। अभी रिक्वायर्ड सीपीएफ 12 है और वेट उसका 10 है। तो यहां पर मोशन चल रहा, अगर नहीं चल रहा तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होता तो किसकी जरूरत नहीं होती? मोशन नहीं है, मोशन नहीं है तो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स की गरज नहीं, मोशन नहीं है तो सीपीएफ की जरूरत नहीं है, ये नहीं लगेगा। लेकिन वेट तो है, वेट तो 10 से नीचे खींच रहा है। टेंशन स्ट्रिंग कितना होता है यहाँ पे? रुका हुआ ऑब्जेक्ट, सिर्फ वेट संभालना है, टेंशन ओनली mg, दैट इज 10।
लेकिन जब ये मोशन में आएगा तो वेट भी संभालना है, मोशन के लिए सीपीएफ भी देना है, तो यहाँ टेंशन इन स्ट्रिंग कितना आएगा, वेट भी संभालो सीपीएफ भी दो, तो व्हाट इज टेंशन इन स्ट्रिंग वुड बी हियर, कितना आता था यहाँ पे टेंशन, सीपीएफ एंड वेट टुगेदर दैट इज 22, यहां पर चला गया आने के बाद वेट उसको नीचे खींच रहा है, 10 नीचे खींच रहा है, और 12 का सीपीएफ होना, 12 का अगर सीपीएफ होना तो अभी ये वेट 10 ये अवे फ्रॉम सेंटर है, ये स्ट्रिंग को खींच रहा है क्या, हेल्प कर रहा है क्या, नाइदर स्ट्रेचिंग नॉर हेल्पिंग, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये हॉरिजॉन्टल है, देयर कंपोनेंट्स टुवर्ड ईच अदर आर ऑलवेज 0, तो यहां सिर्फ सीपीएफ लगेगा, दैट इज 12 ओनली, यहां कितना आएगा टेंशन, सीपीएफ प्लस एमजी, यहां कितना आएगा ओनली सीपीएफ, क्यों, क्योंकि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये ऑब्जेक्ट ना स्ट्रिंग को खींच रहा है ना हेल्प कर रहा है, कुछ भी नहीं करता। नाउ कम टू द हाईएस्ट पॉइंट, यहां आने के बाद सेंटर की तरफ खींचने के लिए फोर्स लगता, सेंट्रीपिटल फोर्स, अब सेंट्रीपिटल फोर्स लगता नहीं लगता ऑब्जेक्ट को थोड़ी मालूम है, ऑब्जेक्ट का वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही है, स्ट्रिंग का काम था ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींच के रखना, स्ट्रिंग ने खींचा भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट खुद अपने आप को सेंटर खींच रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमको 12 की जरूरत थी, 12 की जरूरत थी, उसमें से ऑब्जेक्ट ने खुद को ही नीचे खींचा हुआ है, खुद को खींचा हुआ कितने से, उसका वेट कितना है, वेट 10 उसका वेट है, तो टुवर्ड सेंटर फोर्स होना 12, ऑब्जेक्ट खुद अपने आप को नीचे खींच रहा है, नीचे मतलब यहां सेंटर की तरफ आ गया, यहां भी नीचे खींच रहा है, देखो बी पे ऑब्जेक्ट खुद को नीचे खींचता है, ए पे भी नीचे ही खींचता, लेकिन ये यहां एट बी वेट अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल है, यहां पर वेट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल है, मींस हियर द वेट इज गोइंग टू स्ट्रेच द स्ट्रिंग, वेट अपने आप को, बॉडी अपने आप को टुवर्ड सेंटर खींच रही है, सेंटर की तरफ खींचने का काम किसका था, स्ट्रिंग का, बॉडी खुद को ही टुवर्ड सेंटर खींच रही है, तो बॉडी एक तरह से स्ट्रिंग को हेल्प कर रही है कि अपोज कर रही है, स्ट्रेच कर रही है कि हेल्प कर रही है, यहां बॉडी का वेट इस स्ट्रिंग को टुवर्ड सेंटर खींचने में हेल्प करता है कि स्ट्रेच करता है, यहां वेट नीचे है, स्ट्रिंग को बोला मुझे भी संभाल और सीपीएफ भी दे, दोनों देने पड़ेंगे, यहां जाने के बाद स्ट्रिंग वेट नहीं संभाल सकती, स्ट्रिंग इसका वेट नहीं संभाल, स्ट्रिंग का काम है टुवर्ड सेंटर खींचना, लेकिन खुद ऑब्जेक्ट ही नहीं अपने आप को नीचे खींच रहा है, कितने से, 10 से, टुवर्ड सेंटर फोर्स कितना होना था, 12 की जरूरत थी, बॉडी ने खुद 10 दे दिए, तो अब स्ट्रिंग से कितना एक्सपेक्ट करते हो आप, 12, 10, 22 की 2, एट दिस पॉइंट यहां पर कितना रुका हुआ है तो भी 10, क्यों 10, वेट मोशन में आ गया तो 10 भी दो और 12 भी दो, मतलब यहां कितना हो गया 22, यहां सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स देना है, ओनली सीपीएफ 12, यहां जाने के बाद मोशन नहीं है सपोज, तो ऑब्जेक्ट नीचे खींच रहा है, आ जाएंगे नीचे रुक जाएगा, मोशन है तो स्पीड की वजह से आगे ऐसा फेंका जाएगा, तो मोशन की वजह से उसको सीपीएफ लगता 12 का, 12 इतना सीपीएफ होना, कौन देने को तैयार है, स्ट्रिंग, लेकिन ऑब्जेक्ट खुद को नीचे खींच रहा है, कितने से, 10 से, तो अब स्ट्रिंग की जरूरत किसके लिए रही, कितने के लिए रही, 10, 12, 22 की 2, आंसर दे सकते हो, 1, 2 क्या, 22, 10, 12 की 2, यहां की जरूरत है 22 की, तो यहां स्ट्रिंग का काम था 12 देने का, 12 दे भी सकती है स्ट्रिंग, लेकिन बॉडी खुद ही उसको कंट्रीब्यूट कर रही है, भाई मेरा खुद का वेट 10 है, मैं खुद नीचे खींच रहा हूं, तो स्ट्रिंग की जरूरत कितनी बची यहां पे, 12 की 2 ओनली, इज दैट क्लियर, ये समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, तो अब अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग का काम है नीचे खींचना, ऑब्जेक्ट अपने आप को नीचे खींच रहा है, तो ऑब्जेक्ट एक तरह से स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि स्ट्रेच कर रहा है, यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर क्या कर रहा है, अपने आप को नीचे खींच रहा है, तो स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, हेल्प की स्ट्रेच, रुका हुआ रहा तो भी स्ट्रेच, मोशन रहा तो वेट तो स्ट्रेच कर ही रहा, सीपीएफ भी देना है, यहां जाने के बाद यही ऑब्जेक्ट इस स्ट्रिंग को क्या करता, स्ट्रिंग का काम है टुवर्ड सेंटर खींचना, ऑब्जेक्ट अपने आप को खींच ही रहा है, तो ये एक तरह से स्ट्रिंग को हेल्प करता, तो ऑब्जेक्ट का वेट स्ट्रिंग को कहां हेल्प करता, बॉटम मोस्ट पॉइंट कि हाईएस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्ट्रेच करता, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसको हेल्प करता,
उस हेल्प की वजह से स्ट्रिंग थोड़ा रिलैक्स फील करती। स्ट्रिंग का रिलैक्सेशन पे एट द बॉटम स्ट्रिंग वेट स्ट्रिंग को स्ट्रेच करता, टेंशन बढ़ा के देता, 10 से बढ़ा है टेंशन। यहां पर जाने के बाद वेट ऑफ द स्ट्रिंग उसने कम करा के दिया, वेट ने टेंशन ने स्ट्रिंग कम करा के दिया, क्योंकि स्ट्रिंग का काम था 12 से खींचो, बॉडी में खुद अपने आप को 10 से खींचती, स्ट्रिंग का काम 2 कर गया। मतलब टेंशन एट द टॉप, टेंशन एट द बॉटम, दीज आर द इंपॉर्टेंट कंडीशंस। टेक्स्ट बुक में इसका एक्सप्लेनेशन अलग तरह से है। मैंने कल भी बोला आप लोगों को, एक्सप्लेनेशन कैसा भी रहने दो, उस एक्सप्लेनेशन को आप फाइनल आंसर देखो बस। ये अपने लिए प्रैक्टिकली समझने के लिए ठीक है, तो प्रैक्टिकली समझ के फिर इससे हम आगे फार्मूले निकाल सकते। मुलांचा आवाज कमी नहीं झाला ना? तो टेंशन एट द बॉटम कितना रहेगा बताओ मुझे एक बार, व्हाट वुड बी टेंशन एट द बॉटम? एट द बॉटम टेंशन इन स्ट्रिंग कितना रहेगा? टेंशन इन स्ट्रिंग एट द बॉटम इज व्हाट? सीपीएफ एट बॉटम प्लस एमजी की माइनस एमजी। टेंशन एट द टॉप कितना रहेगा? सीपीएफ एट ए प्लस एमजी की माइनस एमजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है समझने के लिए। वेट ऑब्जेक्ट को कहां स्ट्रेच करता? बॉटम में वेट ऑब्जेक्ट को नीचे खींचता, स्ट्रिंग का काम है उसको पकड़ कर रखना। ऊपर जाने के बाद स्ट्रिंग को वैसे बोलो सपोर्ट करना ही कर सकती, ऑब्जेक्ट तो नीचे खींचने वाला अपने आप को, लेकिन स्ट्रिंग का काम है टुवर्ड सेंटर खींचना। स्ट्रिंग का काम था 12 का, वो काम कम कर दिया वेट ने, कितने से कम किया? 10 से, तो टेंशन कितना बचा? ओनली 2। सो एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट इट इज सीपीएफ प्लस एमजी, and at the highest point it is CPF minus mg. These are two important conditions about tension in string. Tension in string at the bottom is CPF plus mg, at the top is CPF minus mg. At the level of center यहाँ क्या है? देखो यहाँ पर वेट नीचे खींचता, स्ट्रिंग को बोला संभाल तू, वेट संभाला प्लस mg। यहां जाने के बाद वेट अपने आप को नीचे खींचता, तरह से सपोर्ट करता, स्ट्रिंग को हेल्प किया उसने, इसलिए स्ट्रिंग का टेंशन कम हो गया। लेकिन लेवल ऑफ सेंटर पे क्या है? जैसे यहां पर वेट अवे फ्रॉम सेंटर था, यहां पर वेट टुवर्ड सेंटर था, यहां पर स्ट्रेच किया, यहां पे हेल्प किया, यहां पर वेट ना टुवर्ड सेंटर है ना अवे फ्रॉम सेंटर है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। तो व्हाट विल हैपन? ये स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेगा, हेल्प करेगा कि नो इफेक्ट? एट द लेवल ऑफ सेंटर उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो टेंशन एट द लेवल ऑफ सेंटर इज ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स एट दैट पॉइंट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे जितना रहेगा उतना ही टेंशन आएगा। ये 3 कंडीशन, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है। क्यों ये है? सपोज बाई चांस इसका स्पीड कम हो गया, घूमते घूमते इसने स्पीड कम कर दिया, तो क्या होगा? गया स्पीड कम कर गया, वापस आ गया, घूमता रहा। कौन से पॉइंट पे नहीं जा सकता? हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं जा सकता, लेकिन फाइनली वो रुक सकता है। कहां पे? लोएस्ट पॉइंट पे रुकने वाला है, रुक जाएंगे यहाँ पे। उसको बोलना यहां मत रुक, ऊपर जाके रुक, ए पे जाके रुक, ठीक है जा भाई ए पे रुक जा। नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकता? बिकॉज स्ट्रिंग कैन नॉट सपोर्ट द कॉम्प्रेशन, स्ट्रिंग कॉम्प्रेशन सपोर्ट नहीं कर सकती, इसलिए ये यहीं रुकेगा अगर रुकना है तो। अगर सर्कुलर मोशन इसको करना है तो फिर ये स्पीड इसको सफिशिएंट रहा तो ही सर्कुलर मोशन कर सकता है, अदरवाइज सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। तो सर्कुलर मोशन को पूरा करने के लिए इसको एक पर्टिकुलर स्पीड रहा तो ही करेगा, वो पर्टिकुलर स्पीड ही आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका सर्कुलर मोशन कहां फेल हो सकता है? घूमते घूमते गया, स्पीड कम पड़ गया, गिर गया नीचे, यहां पर गिरने के चांसेस है। तो ये नीचे सेफ रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट के अनसेफ फील करेगा। यही हम लोग एक मोटरसाइकिल का एग्जांपल लेते हैं। ये मोटरसाइकिल है, वो स्पीयर में की और इसमें घूम रही है सर्कल के अंदर। यहाँ बॉटम पे रुक गया, वेट संभाल, वहां ऊपर जाने दो, वेट उसको कहां खींचने वाला? मोटरसाइकिल को नीचे। वेट नीचे खींचेगा, गिरने के चांसेस है उसके वहां पे पूरा। तो अब मैंने आपको नंबर्स के फॉर्म में बताया कि कहां कितना टेंशन आएगा, वेयर हाउ मच द टेंशन विल बी। एट द बॉटम कितना टेंशन रहेगा, एट द टॉप कितना टेंशन आएगा, उनके बारे में। ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। एट द बॉटम सीपीएफ प्लस एमजी, एट द टॉप सीपीएफ माइनस एमजी। ये मैं स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा रहा हूं। ये आगे ब्रिज के बारे में थोड़ा चेंज होने वाला है, लेकिन अभी ये पढ़ लो, बाद में ब्रिज का आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो एट द बॉटम सीपीएफ प्लस एमजी, एट द टॉप सीपीएफ माइनस एमजी। तो एट द टॉप सीपीएफ माइनस एमजी इज 12 माइनस 10, एट द बॉटम इट इज 12 प्लस 10। एक नंबर लिया, एग्जांपल लिया समझने के लिए। ये 12 किस पे डिपेंडेंट है? 12 सेंट्रीपिटल फोर्स है। 12 सेंट्रीपिटल फोर्स है, एम वी स्क्वायर बाय आर। ये मास पार्टिकल का कांस्टेंट है, मोशन रहो कि नहीं रहो, रेडियस कांस्टेंट है। किस पे डिपेंड करेगा? स्पीड पे डिपेंड करेगा।
जितना स्पीड ज्यादा उतना सीपीएफ रिक्वायर्ड ज्यादा, जितना स्पीड कम उतना सीपीएफ रिक्वायर्ड कम। रुक गया पार्टिकल तो स्पीड जीरो, सीपीएफ जीरो, पार्टिकल का मोशन शुरू हो गया, स्पीड आ गया, मोशन भी आ गया। मोठे सर क्लास मधले स्पीकर मोठे सुरू ठेवा, सुरू ठेवा, जोरात बोललं जाते नाही तिकडून, त्याचा आवाज येत राहिला आम्ही नॉर्मल आवाजात बोलतो। हा इथेच ती बॉटल दे बरं पाण्याची। ये पॉइंट ख्याल में आया क्या? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक बार ये आगे बस अभी 5 मिनट में और एक कंडीशन आएंगी, वो कंडीशन आ गई कि बस सर्कुलर मोशन का क्रिटिकल पॉइंट हो गया, समझ लो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। तो एट द बॉटम वेट संभालना है तो सीपीएफ प्लस एमजी। लेवल ऑफ सेंटर पे वेट ऑब्जेक्ट को ना अवे फ्रॉम सेंटर खींचता ना टुवर्ड सेंटर खींचता, इसलिए टेंशन फॉर मोशन ओनली सीपीएफ। हाईएस्ट पॉइंट पे गया तो एट द हाईएस्ट पॉइंट जाने के बाद ऑब्जेक्ट का वेट उसको नीचे खींचेगा। सीपीएफ देना स्ट्रिंग का काम है, स्ट्रिंग तो नीचे खींचने वाली थी, ऑब्जेक्ट अपने आप को नीचे खींचता, तो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग को एक तरह से हेल्प करता। ऑब्जेक्ट टुवर्ड सेंटर खींचना था, ऑब्जेक्ट ने 10 से खींच लिया, 12 से खींचना था, तो स्ट्रिंग की जरूरत कितनी बची? ओनली फॉर डिफरेंस, 2 का काम रह गया स्ट्रिंग का बस। तो एट द बॉटम सीपीएफ प्लस एमजी, एट द टॉप सीपीएफ माइनस एमजी, लेवल ऑफ सेंटर ओनली सीपीएफ। ये मैं आपको और दूसरे वे से बता सकता हूं। हाउ? अब दूसरे वे से एक्सप्लेन करता हूं, यही सारे पॉइंट्स जो टेक्स्ट बुक में वे है उस वे से। ये हमने कंसेप्चुअली समझ लिया, अभी ये फॉर्मूला बेस समझ लेते एक बार कि भी मुझे टेंशंस निकालने हैं एट डिफरेंट पोजीशन, तो मैं एट एनी पोजीशन पहले टेंशन के बारे में सोच लेता। ये एंगल रहा थीटा, ये एनी पोजीशन पी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट वर्टिकली डाउनवर्ड mg। अभी ये वेट या कंपोनेंट ऑफ वेट, इफ वेट को मैं कंपोनेंट निकाल लेता, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, फिर इस वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा। ये mg cos थीटा क्या कर रहा है स्ट्रिंग को? ये mg cos थीटा, ये ऐसी है स्ट्रिंग, ये था वेट नीचे, ये mg cos थीटा स्ट्रिंग को एक तरह से खींच रहा है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। अभी यहां स्ट्रिंग को अवे फ्रॉम सेंटर खींच रहा है, mg के mg cos थीटा। व्हाट इज पुलिंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम सेंटर? mg की mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो अब सर्कुलर मोशन चल रहा है, मतलब स्ट्रिंग को सीपीएफ तो देना ही देना है सर्कुलर मोशन के लिए। एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट बाहर खींचा हुआ है, कितने से बाहर खींचा हुआ है? mg के mg cos थीटा। ऑब्जेक्ट इज पुल्ड आउट बाय द फोर्स ऑफ mg cos थीटा। तो व्हाट इज नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग? क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रिंग की? सीपीएफ भी दो, mg cos थीटा भी संभालो, ऑब्जेक्ट का वेट का कंपोनेंट बाहर खींच रहा है उसको पकड़ के रखो और सीपीएफ दो। तो इट इज व्हाट प्लस mg cos थीटा। ये रहा टेंशन इन स्ट्रिंग। तो टेंशन इन स्ट्रिंग एट एनी पोजीशन इज, एट एनी पोजीशन p, टेंशन इन स्ट्रिंग इज सीपीएफ एट दैट पोजीशन प्लस mg cos थीटा। सीपीएफ एट दैट पोजीशन प्लस व्हाट? mg cos थीटा। अब ये थीटा पोजीशन टू पोजीशन बदलते जाएगा। नाउ लेट अस चेक एट द बॉटम b, एट बॉटम b थीटा कितना रहेगा? ये लाइन दो कोइंसाइड हो गई तो थीटा कितना आएगा बताओ यहाँ पे? OP and OB coincides, then theta is how much? Then theta comes out to be 0. Theta 0 तो cos 0 is 1. At bottom theta is 0. Put theta 0. Tension at bottom is CPF at bottom, वहां का CPF plus mg into 1. 1 is cos theta, cos 0 is 1. ये आ गया CPF plus mg, जो मैंने पहले आपको कंसेप्चुअली बताया, डायरेक्ट बताया था। ये फॉर्मूले से निकाला। ऐसे बताने के लिए 5 मिनट लगते, ये समझाने के लिए 25 मिनट गए। तो सीपीएफ इज mg एट लेवल ऑफ सेंटर, यहां निकालते। अब यहां आने के बाद थीटा कितना हो जाता? यहाँ थीटा 0 हो गया था, पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ओबी ओपी यहाँ पे आ गया, यहाँ थीटा कितना हो जाता? 90 डिग्री। थीटा अगर 90 हुआ तो एट लेवल ऑफ सेंटर
at level of center theta is 90 degree, cos 90 0, 0 into anything is 0. So what is tension at the level of center? Tension at the level of center is nothing but CPF at the level of center, जो पहले निकाला था इधर, ये CPF at the level of center. अब थर्ड, एट हाईएस्ट पॉइंट ए पे जाने के बाद, ए पे चला गया तो व्हाट इज थीटा हियर? थीटा इज 180, ओबी से गिनना है थीटा, थीटा इज 180. तो एट हाईएस्ट पॉइंट थीटा कितना हो गया? एट हाईएस्ट पॉइंट थीटा इज 180 डिग्री. थीटा अगर 180 डिग्री है तो cos 180 इज -1. सो इट इज टेंशन एट ए is CPF at A plus mg into -1 because cos 180 is -1. तो CPF at A minus mg आएगा आंसर. So tension at A will be equal to CPF at A minus mg. ये अगर टेंशन एट A. ये तीनों मैंने बिना फार्मूले के पहले डायरेक्ट लिखे थे. बॉटम में वेट स्ट्रिंग को खींचता इसलिए CPF प्लस mg, ऊपर गया तो वेट स्ट्रिंग को हेल्प करता CPF माइनस mg, लेवल ऑफ सेंटर पे गया तो ना खींचता ना हेल्प करता, ओनली CPF. तो ऐसे याद रखो, नॉट बाय दिस फार्मूलीज. सो एट एनी पोजीशन CPF प्लस mg थीटा, अकॉर्डिंग टू थीटा हमने टेंशंस निकाल लिए. अब इसमें सर्कुलर मोशन फेल होने के चांसेस कहाँ हैं? ऑब्जेक्ट यहां पर रुक भी सकता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको बोला जा भाई सी पे जाके रुक जा, गया सी पे रुक गया, रुक सकता है यहाँ पे, जैसे रुकेगा वापस नीचे आ जाएगा. किसने खींचा नीचे? तो ये बी के अलावा और कहीं रुक नहीं सकता. अगर कंटिन्यूस सर्कुलर मोशन करना है तो कहीं नहीं रुकना है, लेकिन ये रुकना अगर है तो सिर्फ बी पे ही रुक सकता, बी पे भी नहीं रुक सकता, छोड़ दो वापस आ जाएगा, लाइक दिस. नाउ अब अगर ए पे आप सोचते हो तो नीचे गिरने के चांसेस कब रहेंगे? रुक गया तो या स्पीड कम हो गया तो. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय, centripetal force is given by mv square by r, weight mg at the highest point. सोचते हैं यहाँ पे, वी आर थिंकिंग ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ओनली. बॉटम पे तो CPF प्लस mg आने वाला है, हाईएस्ट पॉइंट पे चले जाओ. यहाँ पर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जरूरत, स्ट्रिंग का काम था CPF देना, स्ट्रिंग देने को तैयार है, ऑब्जेक्ट खुद को नीचे खींच रहा है, मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट खुद को टुवर्ड सेंटर खींच रहा है. बाई चांस टुवर्ड सेंटर आ गया, वैसे वो अपने आप को टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ खींच रहा है, वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इस सर्कल के भी सेंटर की तरफ है. तो वेट इज कंट्रीब्यूटिंग इन द CPF, वेट अपने आप को टुवर्ड सेंटर खींच रहा है, स्ट्रिंग को बोल रहा है भी मैं अपने आप को टुवर्ड सेंटर खींच रहा हूं, यूज कर लो. तो CPF में वेट यूज हो जाता, इसलिए यहां पर एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हाट इज टेंशन? CPF प्लस mg की माइनस mg, CPF माइनस mg. समझो यहां मैंने पहला एग्जांपल लिया था, CPF था 12, वेट था 10, इसलिए स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा? बॉटम में कितना आया था? 22. टॉप में कितना आएगा? बॉटम में दोनों संभालने हैं, टॉप में सिर्फ डिफरेंस प्रोवाइड करना है. तो एट द टॉप आया था CPF माइनस mg, बॉटम आया CPF प्लस mg. अब इनमें से ये चेंज नहीं होने वाला, बॉडी रुकी हुई रहे, मोशन में रहे, कुछ भी रहे, वेट तो 10 का 10 रहेगा. अब रहा सवाल सेंट्रीपिटल फोर्स का. सेंट्रीपिटल फोर्स विल डिपेंड ऑन स्पीड. स्पीड अगर बढ़ गया तो CPF बढ़ेगा, स्पीड बढ़ता है तो CPF बढ़ गया, स्पीड कम हो गया तो CPF कम हो गया. तो CPF एट ए, स्पीड एट ए पे डिपेंड करेगा. मोर द स्पीड मोर CPF, लेस द स्पीड लेस द CPF. अब ऐसा करते इसका स्पीड और बढ़ाते, अभी जितना स्पीड है उस स्पीड के अकॉर्डिंग, अभी जितना स्पीड है V1 उसके अकॉर्डिंग CPF रिक्वायर्ड है 12, CPF रिक्वायर्ड अभी 12 की जरूरत है, वेट उसका 10 है, टेंशन इन स्ट्रिंग 2 आएगा. स्पीड और बढ़ाया सपोज, और बढ़ाया तो CPF और बढ़ गया, CPF और बढ़ गया, सपोज 15 हो गया CPF 15 होना, वेट 10 है, 15 में से 10 बॉडी अपने आप का वेट देंगी. स्ट्रिंग का काम कितने का है? 15 की जरूरत थी, बॉडी ने 10 खुद दे दिए, जरूरत कितनी रहेगी? 5 की. टेंशन इन स्ट्रिंग यहां पर कितना आया था? 2, यहां पर कितना आया? 5. अगर बाई चांस मैंने ये स्पीड बढ़ाया था, अब अगर स्पीड कम किया तो स्पीड कम किया, V3 किया, स्पीड कम किया तो CPF भी कम हो गया, CPF कम हो गया, समझो CPF हो गया 13. टेंशन कितना रहेगा? वेट तो 10 का 10 ही रहेगा, CPF हो गया 13 होना, 10 है, 10 उसको हेल्प करेगा, 3 का आएगा टेंशन.
और स्पीड कम कर दिया, और स्पीड कम कर दिया। अब सीपीएफ जो है और कम हो गया, सीपीएफ 4 11 का ही हो गया। सीपीएफ सिर्फ 11 का होगा, वेट 10 है, क्या होगा? ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, सीपीएफ उसको 11 के होना, बॉडी खुद को 10 से खींच रही है, टेंशन कितना आएगा? ओनली 1। और स्पीड कम कर दिया, और स्पीड कम कर दिया। मैंने कल आपको मोटरसाइकिल का एग्जांपल दिया था, वो स्पीयर में घूमने वाले मोटरसाइकिल। अगर और स्पीड कम कर दिया तो क्या होगा? सपोज स्पीड और कम कर दिया और सीपीएफ की जरूरत सिर्फ अब 8 हो गई, सीपीएफ की जरूरत सिर्फ 8 हो गई। हाँ, बी अवेयर अबाउट दिस नाउ, यहां पर आपको समझना है। सीपीएफ की जरूरत 8 हो गई और बॉडी खुद को 10 से खींचती है, बॉडी खुद को 10 से खींची है और जरूरत सिर्फ 8 की है, तो क्या होगा? बॉडी विल कंटिन्यू द सर्कल, कि स्ट्रिंग विल गेट स्लैक। खींचना था 8 से और खींचा 10 से, जरूरत 8 की थी और 10 से खींचा गया, तो ऑब्जेक्ट विल रिमेन ऑन, स्ट्रिंग विल रिमेन स्ट्रेच कि गेट स्लैक। स्लैक होना मतलब क्या? सर्कल पे रहना कि नीचे आना? तो ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, कितने से नीचे आएगा? 10 से खींचा, जरूरत 8 की थी, 2 एडिशनल हो गया, उसकी वजह से नीचे आएगा। मीन्स विल कंटिन्यू द सर्कल, विल नॉट कंटिन्यू द सर्कल? इट कैन नॉट कंटिन्यू द सर्कल अगर स्पीड कम हो गया तो। एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है, ऐसी अगर कंडीशन आए कि सीपीएफ की जरूरत है 10 और वेट भी है 10, ये कभी चेंज नहीं हुआ, ये चेंज होते गया सीपीएफ, वेट कभी चेंज नहीं हुआ, सीपीएफ एज इट इज रहा, उतना का उतना, वेट उतना का उतना रहा, सीपीएफ कम ज्यादा होते गया। ये कंडीशन आ गई। अब ये कंडीशन में बताओ मुझे क्या होगा? सीपीएफ की जरूरत है 10, वेट भी है 10, तो टेंशन इन स्ट्रिंग कितना आएगा? स्ट्रिंग का काम था टेंशन देना 10 का, लेकिन बॉडी खुद को नीचे खींच रही है 10 से, तो व्हाट इज नॉट टेंशन इन द स्ट्रिंग? टेंशन इन द स्ट्रिंग इस केस में कितना आएगा? लेकिन अब स्ट्रिंग विल गेट स्लैक कि विल नॉट गेट स्लैक? 10 होना 10 ही है, 10 से कम भी नहीं है, 10 से ज्यादा भी नहीं है। अगर स्पीड बढ़ाया, सीपीएफ 12 का लगा, तो ऑब्जेक्ट ज्यादा खींच रहा है, मतलब टेंशन इन स्ट्रिंग कितना आएगा? 2। स्पीड और बढ़ाया, 15 लगता, टेंशन इन स्ट्रिंग कितना आएगा? 5। स्पीड कम किया, सीपीएफ 13 का है, टेंशन 3। स्पीड कम किया, सीपीएफ 11 का है, टेंशन 1। स्पीड और कम किया, सीपीएफ सिर्फ 10 का है, only 10 required and only 10 available. What will happen now? Now the string is slack, stretch, straight, स्ट्रिंग सिर्फ खड़ी रहेंगी ऐसी स्ट्रेट, ना स्ट्रेच रहेंगी ना स्लैक होंगी ऐसी, एंड पार्टिकुलर कंप्लीट द सर्कल। ऐसा कब होगा कि स्ट्रिंग ना स्ट्रेच है ना स्लैक है, पार्टिकुलर सर्कल कंप्लीट करेंगे, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द टॉप 0 आएगा। ऐसा कब होगा? कौन इक्वल रहेंगे तो? सीपीएफ एंड वेट अगर इक्वल है, कहां पर? एट द हाईएस्ट पॉइंट, then the string can complete the circle, object can complete the circle, but the string is neither stretch nor slack. अब फिर से एक बार बताता हूं आपको। एट द हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, वेट उसका नीचे उसको खींच रहा है, वेट उसका 10 है, कितना सीपीएफ होना ये किस पे डिपेंड करेगा? स्पीड पे। स्पीड अगर बहुत ज्यादा है, समझो सीपीएफ की जरूरत आपकी 14 है, तो टेंशन इन कितना रहेगा? 10, 14, 24 की 4 ओनली। एट द हाईएस्ट पॉइंट वेट उसमें 14 होना, 10 खुद ही बॉडी दे रही है, तो स्ट्रिंग से कितना होना? सिर्फ 4। स्ट्रिंग में टेंशन आ गया 4। स्पीड आपने कम किया, सीपीएफ हो गया 12। स्पीड कम करने से सीपीएफ कम होता, वेट कम नहीं होता। सीपीएफ हो गया 12, वेट है 10, तो फिर अब सीपीएफ 12 है, वेट उसका 10 है, व्हाट विल हैपन? टेंशन इन स्ट्रिंग कितना बच गया? 10, 12 होना था, 10 बॉडी ने दे दिया, बचा कितना? सिर्फ 2, तो आ गया उसका टेंशन स्ट्रिंग। बाद में स्पीड और कम किया, ये 11 हो गया, टेंशन स्ट्रिंग सिर्फ 1 बचा। अगर मैंने स्पीड ऐसा मैनेज किया कि मुझे सीपीएफ 10 का ही होना और वेट बॉडी का 10 ही है, अब सीपीएफ 10 ही होना, बॉडी का वेट भी 10 ही है, स्ट्रिंग देने को तैयार थी लेकिन बॉडी ने खुद दे दिया, तो स्ट्रिंग इज नाउ स्ट्रेच स्ट्रेट, मतलब नाइदर स्ट्रेच नॉर स्लैक, ना खिंचाव है ना स्लैक है, स्ट्रिंग सिर्फ सीधी खड़ी है, ऑब्जेक्ट कंटिन्यू करेगा सर्कुलर मोशन इस कंडीशन में। बाई चांस स्पीड अगर और कम हो गया तो अभी सीपीएफ सिर्फ 8 का होना, वेट तो 10 का है, अब बॉडी खुद को 10 से खींच रही, जरूरत 8 की थी, स्ट्रिंग उसको सपोर्ट कर सकती क्या ऊपर? नहीं, स्ट्रिंग सिर्फ खींच सकती है, सपोर्ट नहीं कर सकती। इस केस में सर्कुलर मोशन विल कंटिन्यू
कि विल नॉट कंटिन्यू, स्ट्रिंग स्लैक हो जाएंगी, पार्टिकल सर्कल छोड़ के नीचे आ जाएगा, नीचे ऐसा गिर जाएगा। मतलब सर्कुलर मोशन होने के लिए टू जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, टू जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। टू जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, पार्टिकल को अगर जस्ट वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो क्रिटिकल कंडीशन कहां पे आती है, गिरने के चांसेस कहां पे, एट द बॉटम की एट द टॉप। टॉप में, बॉटम में तो अटक जाएगा, लटक जाएगा बॉस, गिरा थोड़ी नीचे, यहां पे जाके गिर सकता है नीचे। कब गिरेगा नीचे, क्या ज्यादा हो गया तो, स्पीड की वेट, वेट तो कांस्टेंट है, स्पीड अगर कम पड़ गया, सीपी अगर कम पड़ गया तो नीचे गिर सकता है। टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट क्या कंडीशन होना आपको, एट हाईएस्ट पॉइंट सेंट्रीपिटल फोर्स एट ए शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। टू जस्ट कंप्लीट, अब मैं 3 कंडीशन और लिखता। इफ नाउ, इफ सीपीएफ एट ए इज मोर देन mg तो क्या होगा, इफ सीपीएफ एट ए इक्वल टू mg तो क्या होगा, इफ सीपीएफ एट ए इज लेस देन mg तो क्या होगा। वेट 10 10 10, ये 12 ये 10, ये 12 ये 10, ये 10 ये 10, ये 9 ये 10। अब बताओ मुझे, यहां सीपीएफ ज्यादा है, वेट कम है, स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रिंग की हेल्प लगेंगी, कितने की हेल्प लगेंगी, ओनली 2। यहां जरूरत है क्या, नहीं है, जितना होना उतना मिल गया। लेकिन यहां पर वेट ज्यादा है और जरूरत कम है, स्ट्रिंग सपोर्ट कर सकती क्या, नहीं। हियर सर्कुलर मोशन विल फेल, हियर सर्कुलर मोशन विल कंटिन्यू। ये रही क्रिटिकल कंडीशन, ये क्रिटिकल कंडीशन है कि इस कंडीशन में पार्टिकल विल जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, जस्ट वर्टिकल कंप्लीट करेगा, नीचे गिरने से बचेगा, बाल बाल बच गया, नीचे गिरने वाला था, ऐसी कंडीशन। ये इस कंडीशन से आपके फॉर्मूले अब स्टार्ट होंगे। आई होप दैट यू हैव गॉट ऑल दिस एक्सप्लेनेशन कि व्हाट इज द क्रिटिकल कंडीशन, कहां आती है क्रिटिकल कंडीशन, सर्कुलर मोशन फेल होने के चांसेस कहां है, बॉटम में है कि टॉप में है। सर्कुलर मोशन टॉप में फेल हो सकता है क्योंकि स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं कर सकती ऐसा वेट को, स्ट्रिंग कैन नॉट सपोर्ट इन कंप्रेशन, इट कैन सपोर्ट ओनली इन टेंशन। तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए ये नंबर्स में मिटा देता हूं, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, प्रोबेबली आज आएंगे नोट्स आपके। तो सर्कुलर मोशन विल कंटिन्यू, सर्कुलर मोशन सेफ, यहां भी सर्कुलर मोशन होगा लेकिन ये क्रिटिकल रहेगा, जस्ट बच गया। यहां पर सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा कि विल नॉट कंप्लीट, कैन नॉट कंप्लीट सर्कल, कैन नॉट कंप्लीट सर्कल एट द हाईएस्ट पॉइंट, वो नीचे गिरने वाला है क्योंकि वेट ज्यादा हो गया, स्पीड कम पड़ गया, नीचे गिर जाएगा। इसी कंडीशन को मैं आगे बाइक के फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आप ये कंडीशन याद रखो कि एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हाट इज द क्रिटिकल कंडीशन, एट द हाईएस्ट पॉइंट क्रिटिकल कंडीशन क्या होंगी, कौन किससे ज्यादा नहीं होना। एक बात बताओ, वेट तो ऑब्जेक्ट का फिक्स रहता, सीपीएफ हम कम ज्यादा कर सकते, स्पीड बढ़ाया तो सीपीएफ बढ़ेगा, स्पीड कम किया तो सीपीएफ कम होगा। सीपीएफ हम कम ज्यादा कर सकते हैं, सीपीएफ मतलब स्पीड, स्पीड बढ़ाया तो सीपीएफ बढ़ता, सीपीएफ बढ़ता, वेट जितना का उतना है, टेंशन इन स्ट्रिंग बढ़ते जाएगा, स्ट्रिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएंगी, जितना स्पीड बढ़ेगा उतना। स्पीड कम हो गया, एट द हाईएस्ट पॉइंट बात कर रहा हूं मैं, हो गया तो स्ट्रिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होते जाएंगे, सीपीएफ कम होते जाएगा, वेट उतना का उतना है। लेकिन अगर वेट ज्यादा हो गया, स्पीड कम पड़ गया और वेट ज्यादा हो गया तो नीचे गिरेगा। नीचे गिराने वाला कौन है, वेट की स्पीड, नीचे गिराने वाला कौन है, उसको वेट, और नीचे गिरने से बचाने वाला कौन है, तो उसका स्पीड। तो यहां स्पीड ज्यादा बेटर है कि कम बेटर है। अगर स्पीड, मैंने कल आपको बकेट का एग्जांपल दिया था, पानी लो आराम से ऐसी बकेट घुमाओ, पानी रहता क्या बकेट में, वही बकेट को स्पीड से घुमाओ तो पानी नीचे नहीं गिरता। पानी को नीचे गिरने से कौन बचा रहा है, उसका वेट की स्पीड। एक पर्टिकुलर स्पीड से अगर बकेट घुमाई तो पानी नीचे नहीं गिरता, अगर स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड से कम हो गया तो पानी नीचे गिरता। मतलब नीचे गिराने वाला कौन और नीचे गिरने से बचाने वाला कौन, नीचे गिराने वाला उसका वेट और नीचे गिरने से बचाने वाला उसका स्पीड। तो स्पीड मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, वेट मतलब ये mg। तो कौन ज्यादा होना बचने के लिए, बचाने वाला ज्यादा होना, बचाने वाला कौन, तो स्पीड मतलब सीपीएफ ज्यादा होना, वेट कम होना।
तो वो नीचे नहीं गिरेगा, सेफली सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन उसको कब लगेगा, जस्ट बाल बाल बच गया, गिरने वाला था बच गया, ऐसा कब लगेगा, जब सीपीएफ इक्वल टू वेट हो गया, और गिर जाएगा, बचेंगे ही नहीं। गिरा है किसने, वेट ने, वेट ज्यादा हो गया तो समझो गिर गया। वेट ज्यादा नहीं होने वाला, वेट जितना का उतना रहेगा। वेट ज्यादा कब हो गया ऐसा बोलेंगे, सीपीएफ कम हो गया। वेट तो उतना ही है 10 का 10, लेकिन अगर स्पीड कम हो गया तो सीपीएफ कम हो गया, सीपीएफ कम हो गया तो इसका मतलब वेट ज्यादा भर गया सीपीएफ से, तो इसलिए वो नीचे गिरेगा। गिराया है किसने, क्योंकि बचाने वाला कम पड़ गया। गिराने वाला तो उतना का उतना है 10, लेकिन सीपीएफ कम हो गया तो गिराने वाला भारी पड़ेगा उस पर और नीचे गिरा देगा उसको। तो व्हाट इज द क्रिटिकल कंडीशन, सीपीएफ शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू वेट, तो बचेगा। एकदम सेफ फील करना है तो सीपीएफ ज्यादा होना, स्पीड ज्यादा होना। गिरेगा कब, अगर सीपीएफ कम पड़ गया, स्पीड कम पड़ गया तो। व्हाट इज द क्रिटिकल कंडीशन, क्या क्रिटिकल कंडीशन है और कहां पे आती है। व्हाट इज क्रिटिकल कंडीशन, एट हाईएस्ट पॉइंट ए पार्टिकल जस्ट कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कल। जस्ट वर्ड आता है, जस्ट कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कल। कब कंप्लीट करेगा, जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल इफ सेंट्रीपिटल फोर्स एट ए इक्वल टू mg। सेफली कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, ऐसा कब, सेफली कंप्लीट्स, कब सेफ कंप्लीट करेगा, इफ सीपीएफ एट ए इज लेस की मोर एंड सर्कुलर मोशन कैन नॉट कंप्लीट सर्कल, सर्कल पूरा नहीं कर सकता। ऐसा कब, अगर सीपीएफ उसके वेट से गिरेगा कब, जब गिराने वाला ज्यादा होगा, बचाने वाला कम होगा। बचाने वाला कौन है, सीपीएफ, मतलब स्पीड, सीपीएफ कम पड़ गया, गिर गया। सेफली कब रहेगा, बचाने वाला गिराने वाले से बड़ा है, बचाने वाला सीपीएफ है, बड़ा है, बचेगा नहीं है। जस्ट कंप्लीट, बच गया, जस्ट बच गया, गिरने वाला था, ऐसा कब, जब वो दोनों इक्वल है। इसी को बोलते क्रिटिकल कंडीशन विच ऑकर्स एट द हाईएस्ट पॉइंट। यहां से हमारे फॉर्मूलों का डेरिवेशन स्टार्ट होता है। तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज m into va square by r equal to weight mg, mm cancel, va square equal to rg। तो what is then va equal to, v at a equal to root of rg। हाईएस्ट पॉइंट पे इतना स्पीड होना, अगर स्पीड कम हो गया तो सीपीएफ कम हो गया, सीपीएफ कम हो गया तो गिर गया। तो आपको क्या बोलना है कि स्पीड इतना होना कि इससे कम चलता कि इससे ज्यादा चलता। स्पीड ज्यादा तो सीपीएफ ज्यादा, मतलब बचाने वाला बड़ा, सीपीएफ उसको गिरने से बचाता, स्पीड उसको गिरने से बचाता नीचे। तो व्हाट शुड बी स्ट्रॉन्गर, सीपीएफ ज्यादा होना मतलब स्पीड ज्यादा होना। तो दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड की मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। अगर स्पीड इससे कम हो गया तो सीपीएफ वेट से कम हो जाएगा। वेट उतना का उतना है लेकिन सीपीएफ कम हो गया, सीपीएफ 10 से कम हो गया तो विल कंप्लीट की विल फॉल डाउन। अगर उसे नीचे गिरने से बचना है और सेफ फील करना है तो स्पीड कितना रखना पड़ेगा, रूट आरजी, या इससे ज्यादा या इससे कम। स्पीड कम तो सीपीएफ कम, गिर गया। स्पीड ज्यादा तो सीपीएफ ज्यादा, बच गया, सेफ है। लेकिन जब इक्वल रहेगा तो जस्ट कंप्लीट करेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड इससे कम चलता कि इससे ज्यादा चलता। अगर इससे कम हो गया तो गिरेगा, इससे ज्यादा हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, गिरेगा नहीं। इतना है तो भी गिरेगा नहीं, लेकिन इतने पे एकदम क्रिटिकल, बच गया, जाने वाला था, गिरने वाला था, बच गया, इसलिए इसको क्रिटिकल बोला। इट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, रूट ऑफ आरजी। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट टू कंप्लीट द सर्कल सीपीएफ इज मोर, मतलब speed at A is more than root rg, speed at A is less than root rg। लेस देन हो गया तो गिर गया, ज्यादा हो गया तो बच गया, सेफली। इक्वल है तो जस्ट कंप्लीट करेगा। इस फार्मूले से लेके हम अब ए का वेलोसिटी मिल गई, अब सी की निकाल सकते, बी की निकाल सकते, पी की निकाल सकते। अब सभी पॉइंट पे क्या वेलोसिटी निकाल लिए कि वहां का टेंशन निकाल सकते। आगे डेरिवेशन जो है, दोज आर टू फाइंड द वेलोसिटी एंड टू फाइंड द टेंशन। टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना, वेलोसिटी इन द स्ट्रिंग निकालने के बाद में का काम है। तो पहले वेलोसिटी निकालना है, ए पे तो निकल गई, ए पे कितनी आ गई, रूट ऑफ आरजी। अब बी पे निकालनी है, सी पे निकालनी है, एट एनी पॉइंट निकालनी है। आई होप दैट यू गॉट ऑल दिस पॉइंट्स। सबको पॉइंट समझे क्या, यस नो, मुझे आंसर दो आप लोग।
मैं आप लोगों की आवाज सुनना चाहता हूं अभी। हैव अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट्स? क्या आप लोगों को पॉइंट समझ में आए? यू कैन रेज द हैंड्स। हैव गॉट इट? आज जो मैंने एक्सप्लेन किया ये आपको समझ में आया क्या? कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो भी पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, I will unmute all of you. Yes or no answer दो. Have you understood? सब लोगों ने समझा क्या? समझ में आया क्या?